Dear student, taken some more example for journal entry. Sold goods to Dilip of the list price of rupees 62,000 for 60,000. तो बिजनेस ने गुड्स सोल्ड किया है दिलीप को, लिस्ट प्राइस है गुड्स के 62,000 फॉर 60,000. नाउ जनरल एंट्री, डेबिट द रिसीवर, दिलीप डेबिट what is goes out, goods as a sales nature to sales account, amount rupees 60,000 and 60,000 credit side. Goods sold to Dilip rupees 60,000, list price at rupees 60,000. तो 62,000 के गुड्स को सोल्ड किया गया है 60,000 में, और ये 62,000 वैल्यू किसको प्रेजेंट कर रहा है, लिस्ट प्राइस को. तो डिफरेंस वैल्यू ट्रीटेड एज ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक. नाउ 60,000 सेल्स वैल्यू गुड्स सोल्ड टू दिलीप. एंड नेक्स्ट एग्जांपल, परचेस goods costing rupees 2 lakh from Hari and company, paid 75% immediately by check to avail 4% discount. Goods purchase costing rupees 2 lakh from Hari and company. This transaction is credit transaction, paid 75% immediately by check to avail 4% discount. तो इस ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेस कर रहे हैं हरी एंड कंपनी से, लेकिन अगर पेमेंट हो रहा है 75%, तो यानी कि इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन इंक्लूड है, और 4% ये जो कैश डिस्काउंट है ये अवेल होगा जो 75% पेमेंट अमाउंट है उसके लिए. नाउ जनरल एंट्री, डेबिट व्हाट इज कम इन, गुड्स एज ए परचेज नेचर. Now purchase account debit to what is goes out, immediately paid 75%, payment made by bank, credit the giver to bank account. To credit transaction recorded as a Hari and company, credit the giver Hari and company, discount received by firm to discount as a profit, discount account credit. Now calculate amount which are recorded. Goods purchase value rupees 2 lakh less 25% as a credit transaction, 2 lakh 25% value 50,000, 1,50,000 balancing of
75% which was paid by check. Now 4% cash discount available on cash transaction less 4% cash discount 1,50,000 at the rate of 4%, 6,000 rupees after deducting 1,44,000 paid by check. Now total purchase value 2 lakh recorded on debit side. Bank paid by check only rupees 1,44,000. Hari and Company as a recorded for credit transaction. Hari and Company 25% credit transaction now recorded 50,000. Credit side Hari and Company. Discount cash discount at the rate of 4%. Discount received amount 6,000 as a profit 6,000. Now debit and credit side both are equal. Narration goods purchase from Hari and Company 75% paid by check and discount received. Next, sold goods to Vishal Trading costing rupees 40,000 at 25% profit, allowing 10% trade discount and 10% cash discount. Received 80% payment immediately by check. Sold goods to Vishal Trading कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000. तो बिजनेस ने गुड्स सोल्ड किया है किसको? विशाल ट्रेडिंग को. allowing 10% trade discount and 10% cash discount, receiving 80% पेमेंट इमीडिएटली बाई चेक. तो इस ट्रांजेक्शन में भी कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन इंक्लूड है. तो जनरल एंट्री, तो जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है वो चेक से रिसीव्ड हो रहा है और उस चेक को इमीडिएटली हम, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ऑन द सेम डेट चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. नाउ डेबिट द रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट फॉर कैश ट्रांजेक्शन. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. डेबिट द रिसीवर विशाल ट्रेडिंग recorded for credit transaction. 2. What is goes out? Goods as a sales nature to sales account. Now calculate the amount. Sales is equal to cost plus profit. For this equation, now goods costing rupees 40,000, सेल प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए उसमें 25% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना होगा. नाउ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000
add 25% profit. 40,000, 25% value 10,000. 50,000 as a sales value. 10% trade discount and 10% cash discount. Now sales value as a list price less 10% trade discount. 50,000 at the rate of 10%, 5,000 after deducting 45,000 sales price. Cash and credit both transactions are included. 80% payment immediately by check. Now less 20% credit transaction. 45,000, 20% value 9,000. 36,000 show 80% cash transaction less 10% discount, cash discount only on cash transaction. Now less 10% cash discount. 36,000 at the rate of 10%, 3,600. 32,400 paid by payment received by check. Now payment received by check 32,400 as a bank column. Cash discount are recorded in book 3,600. Credit transaction Vishal Trading 20% credit transaction 9,000 debit side, and sales value after deducting trade discount amount rupees 45,000. Goods sold to Vishal at 10% trade discount and 10% cash discount. Only 80% received by check. Another example, sold goods to Bridge and Company costing rupees 50,000 at 40% profit, allowing 10%
trade discount and 5% cash discount. Bridge and Company paid the full amount by check and availed कैश डिस्काउंट. गुड्स सोल्ड किया गया ब्रिजेस एंड कंपनी को. गुड्स की कॉस्ट प्राइस है 50,000. एड ए प्रॉफिट मार्जिन 40%, allowing 10% trade discount and 5% cash discount. Brijesh and company paid full amount by check and avail cash discount. तो ये पूरा ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन में है. ब्रिजेस एंड कंपनी यहाँ फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है. क्रेडिट ट्रांजेक्शन में ही पर्सन रिकॉर्ड होता है. तो अब यहाँ पे एंट्री पास करेंगे. गुड्स सोल्ड किया गया है और अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, assuming that check was deposited into bank on the same day. Now बैंक अकाउंट डेबिट. बिजनेस यहाँ डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है. बिजनेस के लिए क्या है? लॉस. तो कैश डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक. नाउ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू what is goes out? Goods as a sales nature. Now calculate the amount which are recorded in journal entry. Goods costing rupees 50,000, add 40% profit. Now 50,000, 40% profit margin 20,000. Total value 70,000 as a list price, less 10% as a trade discount, less trade discount at the rate of 10%, 70,000, 10% value 7,000. After deducting 63,000, this is sales value. Clear? ब्रिजेस एंड कंपनी पेड द फुल अमाउंट बाय चेक. यानी कि ये जो सेल्स वैल्यू डिसाइड हुई 63,000, ये पूरा अमाउंट चेक से पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है. तो जो कैश डिस्काउंट अवेल है ये पूरे 63,000 पे कैलकुलेट होगा, लेस 5% कैश डिस्काउंट allowed. 63,000 at the rate of 5%, 3,150 rupees after deducting 59,850. This is payment received by check which was immediately deposited into bank on the same day. Now bank 59,850, discount cash discount 3,150, sales value rupees 63,000. Goods sold to Bridge and Company at 10% trade discount and 5% cash discount. Now take a more example.
प्रोवाइड डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर ₹500 एंड ऑन मशीनरी ₹2000। तो डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं फर्नीचर और मशीनरी पे। जनरल एंट्री, depreciation treated as loss, all expenses and losses debit. Now depreciation account debit to what is goes out, nothing। लेकिन अकाउंटिंग रूल अब यहाँ पे कौन सा अप्लीकेबल होगा? अमेरिकन अप्रोच, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज़ करती है तो डेबिट, और एसेट्स की वैल्यू अगर रिड्यूस कर रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ मशीनरी और फर्नीचर बोथ एसेट्स आर वैल्यू आर रिड्यूस्ड ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स एज ए डिप्रिशिएशन। नाउ एसेट्स वैल्यू रिड्यूस, क्रेडिट टू फर्नीचर एंड टू मशीनरी। Furniture reduced by ₹500 credit side, machinery reduced by 2000 credit side, total value amount debited ₹2500। Depreciation charged on furniture and machinery। Next, received cash ₹1000 for bad debts रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो ये क्या है? एक तरह से बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एज ए प्रॉफिट। तो बैड डेब्ट्स जो रिकवर्ड हो रहा है ये बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट। रिसीव्ड इन कैश, डेबिट व्हाट इज कमिंग? कैश। नाउ कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एज ए बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, जो लॉस अमाउंट था जिस एज ए बैड डेब्ट्स लॉस ऑन डेटर्स, जिसको हमने लॉस दिखा रखा था वो रिकवर्ड हो रहा है एज ए प्रॉफिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। नाउ अमाउंट ₹1000 डेबिट साइड एंड 1000 क्रेडिट साइड। नरेशन, ₹1000 received in cash which was written off as bad debts। Ajay Singh was declared bankrupt. He owed us ₹2500 to us. Nothing could be recovered from his estates। तो अजय सिंह जो हैं जिनसे हमें कितना लेना है? 2500 ओड हैं वो उतने के। बैंकरप्ट होने की वजह से उनके एसेट से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, तो यानी कि ये पूरा लॉस है 2500 एज ए बैड डेब्ट्स। नाउ all expenses and losses debit। now bad debts account debit to अजय सिंह। अजय सिंह के अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज कर रहे हैं। अमाउंट 2500 2500। नरेशन, अजय सिंह was bankrupt, nothing could be realized। Next, ₹20,000 for wages and 4,000 for salary are outstanding। यहाँ वेजेस और सैलरी ये दोनों आउटस्टैंडिंग हैं। इसके लिए जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? वेजेस और सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब समझा गया एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट पेड। तो जब ये दोनों एक्सपेंसेस इसी ईयर का है तो इसी ईयर के फर्म की बुक में रिकॉर्ड होगा। इसका पेमेंट नहीं किया गया है तो फर्म के लिए क्या है? एज ए लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। नाउ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिट
wages account debit, salaries account debit. 2. All expenses and losses debit. Outstanding एज ए क्रिएट लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट करते हैं. नाउ 2 वेजेस आउटस्टैंडिंग एंड 2 सैलरीज आउटस्टैंडिंग. वेजेस अमाउंट 20,000, सैलरी अमाउंट 4,000. नाउ क्रेडिट साइड 20,000 एंड 4,000. इसमें हम ये भी एंट्री कर सकते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, 2 आउटस्टैंडिंग. तो 2 आउटस्टैंडिंग में हम टोटल वैल्यू को 24,000 से भी क्रेडिट कर सकते हैं और ऊपर ये शो कर रहा है कि वेजेस अमाउंट कितना है और सैलरी कितना है. तो वेजेस 20,000 एंड सैलरी ₹4,000. 2 आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट ₹24,000. तो या तो हम सेपरेटली शो करें या एक साथ कंबाइंड भी शो कर सकते हैं. इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 2 आउटस्टैंडिंग expenses amount ₹24,000 as a credit. Clear? Next, provide 9% interest on capital amounted to ₹2 lakh. तो फर्म इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है ओनर को. फर्म के लिए ये क्या है? लॉस. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. 2 ये कैश में तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो पार्टनर्स की कैपिटल और इंक्रीज़ कर जाए, फर्म की कैपिटल में और क्रेडिट कर देंगे. तो कैपिटल का बैलेंस क्या शो करता है? क्रेडिट. तो कैपिटल अकाउंट को और क्रेडिट कर दिया गया. अमाउंट कैपिटल अमाउंट ₹2 lakh, 2 lakh 9%, 18,000 डेबिट साइड, 18,000 क्रेडिट साइड. Interest provided at the rate of 9% on his capital. Provide interest on drawing ₹1,000. इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रहा है किससे? ओनर से. फॉर पर्सनल यूज़ जो उन्होंने विड्रॉल किया था एज ए ड्राइंग, अब उस पर इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज कर रहे हैं कितना? 1,000. फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट. नाउ ड्राइंग अकाउंट डेबिट. 2 interest on drawing as a profit. Interest on drawing amount ₹1,000 debit side and 1,000 credit side. Narration. Interest on drawing charged ₹1,000. Next example, purchase goods for cash ₹10,000 and spend ₹200 for their carriage. गुड्स परचेस कर रहे हैं 10,000 का और परचेस करने पे उस पर जो भी कैरेज है वो कितना है? 200. और जनरल एंट्री डेबिट. व्हाट इज कम इन गुड्स? गुड्स नेचर एज ए परचेस. नाउ परचेज अकाउंट डेबिट. कैरेज ऑन इट. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट. नाउ कैरेज अकाउंट डेबिट. व्हाट इज गोज आउट? तो कैश में पेमेंट हो रहा है. कैश अकाउंट क्रेडिट. परचेज वैल्यू ₹10,000, कैरेज ₹200. व्हाट इज गोज आउट? कैश. टोटल कैश वैल्यू 10,200 ऑन क्रेडिट साइड. गुड्स परचेज एंड कैरेज पेड ऑन इट्स.
परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंड ₹500 फॉर इट्स कैरेज। तो यहाँ पे मशीनरी परचेस कर रहे हैं, मशीनरी की वैल्यू है 50,000 और उस पर कैरेज पेड कर रहे हैं कितना, 500। इसके लिए जब भी कोई कैपिटल एसेट्स हम एक्वायर करते हैं तो उस पर जो भी एक्सपेंसेस होता है वो उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो मशीनरी की टोटल कॉस्ट वैल्यू हो जाएगी 50,500। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा इन ए प्रीवियस एग्जांपल कि गुड्स परचेस कर रहे हैं, उस पर कैरेज पेड कर रहे हैं कितना, 200। तो गुड्स परचेस कर रहे हैं, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिस चीज़ का ट्रेड कर रहे हैं। और ये ट्रेड एवरी इन ए ड्यूरिंग द ईयर मोर टाइम्स क्रिएट होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ यानी कि गुड्स परचेस करने पे जो एक्सपेंडिचर है उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, जनरल एंट्री पास करते समय उसको सेपरेटली शो किया गया। लेकिन ये जो मशीनरी परचेस कर रहे हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो जब भी कोई कैपिटल एसेट्स एक्वायर करते हैं उस पर जो भी एक्सपेंसेस होता है उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए अब नाउ टोटल मशीनरी वैल्यू ₹50,200, तो इसके लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट किया गया, टोटल अमाउंट 50,500 टू व्हाट इज गोज आउट, कैश। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड 50,500। इन ए नरेशन मशीनरी परचेस costing ₹50,000 and carriage ₹500 paid in cash. Next, paid ₹20,000 for cement, ₹10,000 for timber and ₹5,000 as wages for the construction of building. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ये भी एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। इसके लिए जनरल एंट्री, नाउ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, पेड इन कैश, व्हाट इज गोज आउट, कैश अकाउंट। टोटल वैल्यू सीमेंट वैल्यू 20,000, 10,000 as a timber and 5,000 wages. Total amount 35,000 as a building cost, building value. Now narration, ₹20,000 for cement, ₹10,000 for timber and ₹5,000 wages for building construction. Next, purchase an old machinery for ₹20,000 and spend ₹2,500 on its immediate repair. तो ये मशीनरी परचेस कर रहे हैं, न्यूली नहीं है, ओल्ड मशीनरी है 20,000, इस पे रिपेयर एक्सपेंसेस हो रहा है कितना, 2,500। तो बिज़नेस में पुट टू यूज़ होने से पहले ये ओल्ड मशीनरी जो परचेस कर रहे हैं 20,000 का, बिज़नेस में अभी यूज़ नहीं हुआ है, तो पुट टू यूज़ करने से पहले जो भी एक्सपेंसेस है इसको भी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। नाउ जनरल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट, to what is goes out, cash account credit. Amount 22,500 debit side, 22,500 credit side. मशीनरी या ओल्ड मशीनरी परचेस ₹20,000 and repairs on it ₹2,500.
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड ₹500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। ये जो अब एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं रिपेयर के लिए वो मशीनरी पे हो रहा है। क्या ये न्यूली परचेज है? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अदर मशीनरी यानी कि ऑलरेडी जो बिज़नेस में मशीनरी है उस पर रिपेयर पे एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? रिपेयर अकाउंट डेबिट पेड इन कैश, व्हाट इज गोज आउट? कैश अकाउंट। ₹500 डेबिट साइड, ₹500 क्रेडिट साइड। नाउ रिपेयर पेड ऑन मशीनरी। तो जब भी कोई कैपिटल एसेट्स एक्वायर होता है उस पर जो भी एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज या बिजनेस में पुट टू यूज़ करने से पहले जो भी एक्सपेंसेस होगा उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया गया। बिजनेस में मशीनरी यूज़ हो रहा है उसके बाद उस पर अगर कोई रिपेयर हो रहा है तो वो एज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से ट्रीट करेंगे, इसलिए रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश।